very warm good morning to all of you. This is Kumar Roshan, STNC, Mother Teresa Red Cross English School, Surumandir, Jolbita, Pulpul, Patna. So, as our training is in progress, today for the in-house training, we have a new resource person, Mr. Anand Prakash, TTIT 402, with the topic Adopting Inclusion. As our training is processing and each and everyone of our school is busy with the training and showing interest and also attending very enthusiastically the trainings, I congratulate each and every one of you for gaining so many things from this training. So, for the today's training, I personally thank our director sir, our manager sir, our principal ma'am, our teaching as well as non-teaching colleagues, and also congratulate them for having been present in this wonderful training session. So, with this, I would like to invite our resource person, Mr. Anand Prakash, to come and proceed towards the training. So, Anand sir, please come and have the dais. Good morning to all of you, respected directors and principals, and all of our teaching staff. Myself, Anand Prakash, TGTIT 402. Here, we all here for today's topic training session. Topic is adopting inclusive in teaching and learning. Adopting inclusive कह सकते हैं क्या कि inclusive practices, inclusive मतलब कुछ भी बाहरी जो भी कुछ हम लोग बाहर से adopt कर रहे हैं, कुछ धारण कर रहे हैं, inclusive. तो सबसे पहले मैं इंक्लूसिव के बारे में कहना चाहूंगा. इंक्लूसिव टीचिंग और लर्निंग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं डेलिबरेटिंग कल्टीवेटिवली अ लर्निंग एनवायरनमेंट. हम कह सकते हैं क्या कि ये जो इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एडॉप्ट टीचिंग एंड लर्निंग इंक्लूसिव जो प्रैक्टिसेस है जिसे मैं क्लासरूम में हम सब क्लासरूम में अपनाते हैं और अपनाना चाहिए. इसका फाइनली यही है कि डेलिबरेटली कल्टीवेटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट. हम सबको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें बच्चे पढ़ सके. Means that we can say that a student able to learn smoothly, easily. So to fulfill this inclusive teaching and learning, me, you and all should use some inclusive practices that helps child to learn or deliberate any topics, any subjects easily. In inclusive teaching and learning, all students have equal access to learning.
जैसे कह सकते हैं क्या कि if someone adopting inclusive learning in their classroom, they should to create a community of learners. जो सीखने वाले होते हैं उनका कम्युनिटी बनाना चाहिए. Different groups of students, different cultural students, different language, जैसे कह सकते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म. अभी टॉपिक भी चल रही है मल्टीलिंगुअलिज्म, एम्ब्रेसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम. और हम सब कह सकते हैं क्या कि टीचर ट्रेनिंग में ये भी चैप्टर आती है, ये सिलेबस का पार्ट है. एंड वी ऑल टीचर शुड टू implement inclusive learning and teaching in our classrooms, which should to identify and assessing individual needs of learners. कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कल्चरल ज्ञान की आवश्यकता होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें भाषाई ज्ञान की आवश्यकता होती है, और या फिर कह सकते हैं कि they are curious to know, to learn different language, different culture. यहाँ पर कह सकते हैं identifying and assessing individual needs of learners. हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. We all should to identify in classroom. A student, they want to learn some inclusive practices. यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट में कह रही है कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग फॉर ऑल इंक्लूडिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज. अब ऐसा नहीं है कि डांस का प्रोग्राम है और कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रही है स्कूल में और कुछ पर्सन है जो डिसेबल है और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले. नहीं, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए. इंक्लूसिव प्रैक्टिस, if we using inclusive practice in our classroom, then we all able to succeed, we all succeed to deliver what we want. अब यहाँ पे बात होती है क्या कि when we move to our classroom, जब हम क्लासरूम में जैसे ही जाते हैं तो क्लासरूम में we faces some student asking, sir, what today? Some told today is Eid. Some says tomorrow will Diwali. Means that here we hear two different words or answer. Some says Eid, some says Diwali. If we adopting inclusive learning teaching in our classroom, then we able to satisfy those curious students. They curious to know about what is Eid and what is Diwali, and they able to learn, they able to know, और able to know नहीं कह सकते, वो जान पाएंगे, जान ही जाएंगे. कहता है क्या कि if a teacher applying inclusive practices in a classroom, if a teacher or anyone applying inclusive practices in classroom, they should to be facilitate a student's learning through absorptions. अगर कोई टीचर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि किसी भी चीज को वो समझ सके. कि मैंने एग्जांपल बताया ईद और दिवाली, दिस इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव लर्निंग प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम. इंटरेक्शन
एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बच्चे सही से समझ पाएंगे और इंटरेक्शन मतलब जुड़ पाएंगे, ईद से भी जुड़ पाएंगे, अपने दोस्त से भी बात करेंगे कि ईद में और बताओ। ऑब्जर्वेशंस दे एबल टू नो, वो जान पाएंगे कि आखिर अच्छा ईद किस दिन मनाते हैं। और हम लोग का दिवाली जो होती है बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि आई फॉलो हिंदू, और मैं देखता हूँ यहाँ पे ये कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही है, बट जब ये इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की बात हो रही है तो ये भी बता रहा हूँ कि इसका हर साल क्या होता है कि डेट बदलता है। किसी साल नवंबर में, किसी साल अक्टूबर में, किसी साल अक्टूबर लास्ट में। Means we are applying inclusive teaching and learning in classroom. Then children able to know हिंदी month calendar। चैत, वैसाख, वैसे भी बिहार में और यूपी और पंजाब में जो नॉर्दर्न प्लेन का बात हो रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन का जब बात करते हैं पूरे दुनिया का फर्टाइल प्लेन है और सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड का यही इलाका होल्ड करके चलता है। सीजन पे उनका फेस्टिवल बेस्ड मींस दैट कह सकते हैं कि इफ अ टीचर शुड अप्लाई इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग ऑन देयर क्लासरूम, their student able to learn through absorptions, interactions, observations and reflections। अगली बार मैं पूछूंगा कि दिवाली कब है तो बच्चा सीधे बोलेगा वो पहले से कंप्लीट रहेगा हिंदी मंथ का कैलेंडर, वो बोल देगा 1 तारीख को है। If you are applying inclusive teaching and learning in classroom, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म भी एक पार्ट है इसका, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का एक मल्टीलिंगुअलिज्म एक पार्ट है। If we are applying inclusive teaching and learning, I repeat once again, adopting, today's topic is adopting inclusive teaching and learning in our classroom। और कोई और if we are applying, if we are using inclusive teaching learning in our classroom, तो उसमें मैंने फर्स्ट बात बताया कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो योर स्टूडेंट एबल टू फैसिलिटेट और लर्न थ्रू एब्जॉर्प्शंस, इंटरैक्शंस, ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं क्या कि इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग इन क्लासरूम, वी कैन से दैट टीचिंग एंड लर्निंग इन्वॉल्व्स deliberately cultural with a learning environment where all students are treated as equally। Means that you should to treat all students in your classroom equally। आपको क्या करना चाहिए, सारे बच्चे के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और इससे पहले जैसे क्या मैंने बताया कि कोई बच्चा क्लासरूम में है क्या कि फिजिकली कुछ डिसेबल्ड है और स्कूल में कुछ फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा है, मींस You have to give them opportunity। अब आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा। अब आप उनको कैसा अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या करने के लिए उनको आप मोटिवेट करते हैं। और अगर आप इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग आप यूज कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, मींस दैट यू नो अबाउट डिफरेंट कल्चर, यू शुड टू नो अबाउट डिफरेंट लैंग्वेज। और ये पार्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म कि क्लासरूम में क्या है कि मल्टीलिंगुअलिज्म भी आपको होना पड़ेगा अपने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। और बेसिकली ये सब टीचर ट्रेनिंग की पार्ट भी है। इफ यू आर adopting inclusive practices in classroom, inclusive practices मतलब क्या क्या कुछ बाहरी जो भी कुछ आप कार्य कर रहे हैं
जैसे मैं सबसे पहले एग्जांपल बताया क्या कि मैं क्लासरूम में गया और एक बच्चा से पूछा क्या कि परसों क्या है, तो बोला कि सर दिवाली है। एक बोलता है क्या कि ईद था, किसी ने ईद बोला, किसी ने दिवाली बोला, और वहां पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, कम्युनिटी दोनों का अलग है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि ईद आज है, ठीक, कल था ईद, क्या होता है? कोई बच्चा पूछ दिया दिवाली क्या होता है। उसी में किसी ने बच्चा ने पूछा सर पिछले साल अक्टूबर में दिवाली थी, साल नवंबर में दिवाली है। अब वहां पे आपको टाल के नहीं जानी पड़ेगी, आपको उसके क्यूरियोसिटी को खत्म करना पड़ेगा कि बाबू हम लोग हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। अब उनको उसके बारे में अगर बच्चा अगर क्यूरियस होगा, दे एबल टू नो, और वो जान पाएंगे, वो समझ लेंगे। आप उनको बस थोड़ा सा इंक्लूसिव ज्ञान दे देना है, कुछ इंक्लूसिव प्रैक्टिस आप क्लासरूम में अप्लाई कीजिए, ताकि बच्चा जो है डिफरेंट ग्रुप का कम्युनिटी का बच्चा है, कोई बच्चा क्लासरूम में जाता है उसको जय श्री राम बोल देता है, उसको उसमें खुशी होता है। कोई बच्चा कल लाल 2 अक्टूबर के दिन कोई कहता है क्या गांधी जी का जयंती मनाता है, कुछ लाल बहादुर शास्त्री का मनाते हैं, कुछ दोनों का मनाते हैं। मींस दैट वो सब इंक्लूसिव लर्निंग का पार्ट है, उनको समझना पड़ेगा कि इस दिन लाल बहादुर शास्त्री ने जन्म लिए, इस दिन ये महात्मा गांधी ने जन्म लिए। अगर आप इंक्लूसिव लर्निंग यूज कर रहे हैं, टीचिंग एडॉप्ट कर रहे हैं इंक्लूसिव, कुछ बच्चा को किताब से भी हट के कल्चरल एक्टिविटी आप क्लास में यूज कर रहे हैं, कुछ आप लैंग्वेज भी डिफरेंट यूज कर रहे हैं, मतलब आपके क्लास में डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चे हैं, डिफरेंट ग्रुप के बच्चे हैं, और इफ यू आर यूजिंग इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग इन क्लासरूम मींस यू आर इंश्योरिंग सक्सेस ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, और कंज्यूगेटिव का पार्ट है, और उसमें बच्चे का उम्र के बारे में बताया जाता है कि बच्चा का चाइल्डहुड रहता है, अर्ली चाइल्डहुड रहता है, एडोलेसेंस का एज होता है। अब चाइल्डहुड का एज के बारे में बताया जाता है कि बच्चे जो होते हैं उससे भी पहले होता है प्री चाइल्डहुड। Be able to know she is her mother by sense, सेंस से समझ पाते हैं। तो क्लासरूम में आपको ये सब भी अपनाना पड़ेगा। You all should to apply inclusive practices in your classroom. Now it depends on you how you using inclusive practices in your classroom. You should to create, you should to plan, you should to apply equity in society and inclusive education program. आपको क्या करना चाहिए? सोसाइटी में, समाज में बढ़ापी लाना चाहिए। If you are teaching in a classroom, there are different group of child. मैं पहले ही बात कर चुका हूं। If you are adopting inclusive practices amongst them, you success to satisfy their equality. जैसे अब बात आ जाती है यहाँ पे
how can we apply inclusive teaching and learning in our classroom? आपको कुछ इम्बेडेड सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब इम्बेडेड सपोर्ट में क्या ले सकते हैं? जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर करते हैं, बिफोर एंटरिंग क्लासरूम you should to prepare short notes। उसको हम नोट भी कह सकते हैं। That your plan for your classroom। आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। छोटा प्लान बनाना पड़ेगा क्लासरूम के लिए। Project, assignment for different group of students on your classrooms। आपको मटेरियल बनानी पड़ेगी। उस बच्चे को टॉपिक्स, कौन सा टॉपिक मैं दूंगा? एकोमोडेशन, ये भी देखना पड़ेगा ना, क्या मैं बच्चे को टॉपिक जो दूंगा, क्या वो बच्चे टॉपिक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? You should to create barrier-free environment। Barrier-free environment means that we can say that no any obstruction on each and every student in their learning or during learning। If you are adopting inclusive practices in your classroom, you should to modify some material for different group of students। You should to know accommodation is they able to do or not, क्या वो कर पाएंगे या नहीं, कर पा रहे हैं या नहीं। You should to create barrier-free environment। मतलब इंक्लूसिव प्रैक्टिस कहने का मतलब क्या? कुछ बच्चे होते हैं जो 5+5 नहीं समझ पाते हैं, तो उनको आपको ऐसे भी समझाना पड़ेगा कि ये 5, 5, ये 5 और चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 5 और 5 कितने हो गए? These are inclusive practices। When you provide barrier-free environment to your children, मैं फिर से ये बात कहूंगा कि barrier-free environment means that no any obstruction on their path of learning। एक बच्चा क्लासरूम में पढ़ रहा है और क्लासरूम में बहुत तेज बच्चा है और वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, हिंदी समझ रहा है, आप उसे हिंदी में समझाइए। मल्टीलिंगुअलिज्म भी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। आपको मल्टीलिंगुअलिज्म होना पड़ेगा। अगर आपको कुछ सीखना है तो भी आपको मल्टीलिंगुअलिज्म बनना पड़ेगा, और आपको कुछ बताना है तो भी मल्टीलिंगुअलिज्म बताना पड़ेगा। I am adding here, these are topic adopting inclusive practice। This is not a minor topic, this is not a minor training session, बहुत विशाल टॉपिक है। मीन्स दैट इसमें हमें मल्टीलिंगुअलिज्म होना पड़ेगा, हमें चाइल्ड साइकोलॉजी जानना पड़ेगा, हमको चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टेज जानना पड़ेगा, हमें पेडागोजी जानना पड़ेगा, हमें मेथोडोलॉजी जानना पड़ेगा। If we are knowing this all,
then we will be able to create barrier-free environment. We should to create a environment means that हर एक बच्चे को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, ये भी एक पार्ट है ट्रेनिंग का। RTE राइट टू एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान बना, राइट टू इक्वलिटी आया, each and every हर एक स्कूल में मैंडेटरी है, कितना परसेंट कर दिया गया कि बच्चे आपके स्कूल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी रहेंगे। मींस दैट इफ, और ये सब क्या है, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस है, टीचिंग एंड लर्निंग। मींस दैट ऑल चिल्ड्रन शुड एक्सेस टू स्कूल, सभी बच्चे को क्या होना चाहिए, स्कूल का एक्सेस होना चाहिए। और बात कर रहा हूं कि adopting inclusive practices in teaching and learning. Adopting inclusive practices in teaching and learning means that deliberating, teaching, learning, you should to create an environment where all students, different community of students, different society of students, people able to learn or know any subjects। और इसी का पार्ट है क्या कि यू शुड टू मॉडिफाई मटेरियल, एकोमोडेशन होना चाहिए, मतलब उसका पसंद होना चाहिए। बच्चा का मन नहीं है तो आपको उसके हिसाब से नहीं, आप उसको उस टाइम में नहीं, आप उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा सकते हैं। और इसीलिए को करिकुलम एक्टिविटी ऐड किया गया है, बच्चे को गेम दिया गया, बच्चे के लिए गेम का पीरियड दिया गया, बच्चे के लिए पेंटिंग दिया गया, ड्राइंग दिया गया, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी। These all are inclusive practices in teaching and learning। ये सब क्या inclusive practices है। कुछ external support भी होते हैं। बात आ जाती है ना, how can we able to create inclusive or how can we able to adopt inclusive practices in our classroom। कहता है to bring inequality in society and inclusive education program requires, क्या चाहिए, तो कुछ तो इमीडिएट सपोर्ट जो उसको जरूरी है एकदम, जब तक वो सपोर्ट मिलेगा नहीं तब तक इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएगी। उस सपोर्ट में क्या है, लेसन प्लान, सिलेबस, नोट्स, स्टडी मटेरियल, लैब, एक्टिविटी, their accommodation means that their curiosity, उसका जिज्ञासा क्या है बच्चे का, every student able to know their subjects means that we can say that barrier free environment, कि कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए उसको समझने में। मैं बैरियर का बात करता हूं तो मुझे बार बार याद आ जाती है कि आप क्लासरूम में खाली इंग्लिश अगर बोल रहे हो, या फिर मैं क्लासरूम में गया क्लास करने के लिए, मैं सपोज आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, मैं गया क्लास में क्लास करने के लिए, आई नो ओनली हिंदी बट सम वर्ड इंग्लिश आल्सो नो। If teacher are using continuously English,
तो देयर आर 5 बैरियर्स। ये बात हो जाती है कि फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि पढ़ाई हुई है कम्युनिकेशन स्किल की, और कम्युनिकेशन स्किल मींस दैट टू शेयर योर इंफॉर्मेशन, और यहां पर देयर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन सम बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर, कल्चरल बैरियर, पास्ट एक्सपीरियंस, परसेप्शंस, प्रेजुडिशियरी, है ना, ये सब बैरियर, ये सब व्यवधान है, पहले ही समझ लिए कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, नहीं, बट यू शुड टू ट्राई वंस। If we want to adopt inclusive practices in our classroom, we all need multidisciplinary support. Multidisciplinary support means peers. Peers मतलब एक दूसरे का सहयोग। means इसमें कह सकते हैं, if I am teacher and going to a classroom, if I am a teacher going to a classroom and ask a question to our students, when we ask a question to our students, they all keep quiet, सब चुप हो गए। If they say no, then I answered them, कि अगर वो ना बोलते कि मैंने पूछा व्हाट इज प्लेनेट, सब चुप हो गए, जवाब नहीं दिए, कोई जवाब नहीं दिए। अगर उधर से कोई बच्चा पूछेगा कि नहीं जानते हैं, तब तो मैं जवाब देता उसको तुरंत। अब मैं 5 बार पूछा प्लेनेट क्या है, प्लेनेट क्या, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। मुझे याद करना चाहिए क्या मैंने प्लेनेट बता चुका हूं बच्चों को या नहीं बताया, मुझे तुरंत में क्विक आंसर देना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम, then you should to write question and ask answer. पेस मतलब जब तक फीडबैक नहीं आएगी, उधर से जवाब नहीं आएगी, how are you able to know what is lack, क्या कमी रह गई। means that during classes you should to ask question, you should to know, understand children. If they say yes, then you should to ask what do you know and tell me, क्या आपने जाना बताओ मुझे। These are based on child psychology. When we say child psychology, then मुझे याद आती है बच्चे का स्टेज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, when you bombing, brain bombing, when you start to brain bombing on your children, they able to develop their thinking capacity, बच्चे की सोचने की शक्ति बढ़ती है। और ये फायदे कहीं ना कहीं करती है। पीयर्स मतलब मैं बात कर रहा था कि अगर यूज कर रहे हैं इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस अपने क्लासरूम में, तो हमको मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट भी चाहिए, जिसमें पीयर्स का बात कर रहा था फीडबैक, एक दूसरे से सवाल जवाब। Then para-educator. Para-educator means that I am a teacher of IT. Or when I am going to classroom, बच्चे जानते हैं क्या क्या IT पढ़ेंगे सर, आ रहे हैं IT। अगर हम वहां पे IT से हट के बच्चे से जोड़ना
ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर दिया मैंने, बच्चे से मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लिया, बच्चे से मैंने साइंस का क्वेश्चन कर लिया, बच्चे से मैंने मैथ का क्वेश्चन कर लिया, एक दो ज्यादा नहीं। Means that you are using inclusive practices in your classroom. और ये पार्ट है, कहीं पे आप लोग देख सकते हैं, खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में। One teacher can do different work, different one teacher able to taught different subject and all teachers should to adopt it. मैं एक खास बात बता रहा हूं, अगर आप क्लासरूम में गए और बच्चे जान रहे हैं मेरे लिए कि मैं आईटी का टीचर हूं, आई एम टीचर ऑफ आईटी, और सपोज उस दिन बच्चे को मैंने आईटी से हटा के मैंने कुछ ज्योग्राफी का एक दो पार्ट पढ़ा दिया या पूछ दिया, बच्चे ने जवाब दिया या नहीं जवाब दिया, मैंने उसे आंसर दिया, मैंने उसे समझाया, then it affect on their psychology. If you delivering a good knowledge, if you are using inclusive practices in your classroom, मैं आईटी का टीचर गया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, दो टॉपिक पढ़ाया, बच्चे अच्छे से समझे, अगले दिन उस क्लास में मैं कभी डबल जाऊंगा, स्टूडेंट will curious to know some new or more. कभी मौका मिल गया, फर्स्ट पीरियड गया, आईटी पढ़ा दिया, उसके बाद एक पीरियड और जाने को मिला, बच्चे जिज्ञासु रहेंगे कि आज कुछ और सीखेंगे सर, बिकॉज उसका साइकोलॉजी में ऐसा बैठ चुका है कि अच्छा सर ज्योग्राफी भी अच्छे से समझा दिए थे, सर से समझ जाते, वो आपको पसंद करेंगे, वो बोर्ड नहीं होंगे। और कहा जहां तक ये बात करें, मैंने ये बात की कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट भी बन गया रुकावट जो होता है आपके ग्रुप्स के बीच में। पर्सनली मैं टीचर हूं, मैंने फील किया, सर टेल मी व्हाट यू लाइक टू टॉट मी, आई सेड माय सब्जेक्ट इज आईटी, सर आईटी मुझे पढ़ने, मतलब सिलेबस कंप्लीट है, बच्चे बोल रहे हैं कि चलिए इससे हट क्यों पढ़ना, उनका कुछ मन था, और वहीं पे मैंने बोल दिया फिजिक्स, जिससे ओके, दे एबल टू नो, दे ट्राई टू नो, बच्चे यहाँ पे अपने डेप्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं, ना कि आपके बारे में। If you are using inclusive practices in your classroom, if you are using inclusive practices in your classroom, then each and every section, each and every group of a student able to know, able to understand, if you are using inclusive practices in your classroom, the inclusive teacher education program should aim at addressing
नीड्स, किसी की क्या जरूरत है। कोई बच्चा फिजिकली चैलेंज है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उस बच्चे को मैं कैसे ट्रीट करूंगा। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, एड्रेसिंग द इंडिविजुअल नीड्स फॉर ऑल चिल्ड्रन इन अ क्लास। किसी एक की जरूरत के साथ साथ सबके जरूरत को भी पूरा करना है। अब ऐसा नहीं कोई बच्चा बहुत तेज है तो मैं उसको बता रहा हूं वाला को छोड़ रहा हूं, नहीं, ये इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस नहीं है। हाँ, एक बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल्ड है उसको मैं कुछ ज्यादा ट्रीट कर रहा हूं, कुछ अच्छे से और समझा रहा हूं, अदरवाइज उसको मैं शॉर्ट में जो समझ पा रहे हैं, जो लिख पा रहे हैं सही से। आपको if you are using inclusive practices in your classroom means that you facilitating teaching learning process। आप जो है ना सही तरीके से टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को आप चला रहे हैं। If you are using inclusive practices, मतलब पहले मैंने बताया inclusive practices में वो क्या है, means that you are creating a barrier-free environment in your classroom. You providing a special support to physically disabled student or weaker student. You are using curriculum activities as well as co-curriculum activities in your classroom, in your schools. If you are using inclusive practices in your classroom, means that you are providing role model to the learners. सीखने वाले को एक रोल मॉडल आप प्रोवाइड कर रहे हो कि सीख लो। If you are adopting inclusive practices in your classroom, means that you should social reconstruction in a context। आपको क्या होना चाहिए, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, समाज को फिर से व्यवस्थित करना चाहिए। व्यवस्थित करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप जो समाज का है, नहीं, आप एक सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। सोसाइटी मींस दैट व्हाट, I am repeating once again this topic, adopting inclusive practices in our classroom or during learning and teaching. This is a vast topic. This is vast topic that we should to use in our classroom. If you want to be successful educators, successful catalysts, you should use inclusive practices in classroom। और यहां तक जहां तक बात था, now we are saying attaching field relevance। बच्चे को ये भी बताना चाहिए कि तुम साइंस पढ़ोगे तो तुम एक साइंटिस्ट बनोगे, तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तुम अर्थक्वेक ये सब के बारे में, अर्थ के बारे में जान पाओगे। आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो लैंग्वेज के बारे में समझ पाओगे। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो पॉलिटिक्स के बारे में जान पाओगे। मींस दैट अटैचिंग फील्ड रिलेवेंस। Some student want to, their goal is to become a good scientist। अब यहाँ पर शब्द की गोल क्या होती है, बहुत कोई कहते हैं गोल गोल गोल। गोल मीन्स अ डेस्टिनेशन दैट वी वांट टू अचीव, और उसमें एक लिमिटेशन रहता है, टाइम का, समय का लिमिटेशन रहता है। तो कुछ बच्चे का अगर गोल है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मतलब उसका समय का लिमिट, तो बच्चे को आप क्या बताओगे, आप कौन सा साइंस बनना चाहते हो, साइंटिस्ट, फिजिक्स बनना चाहते हो, केमिस्ट बनना चाहते हो, जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो। If you are teacher, you should to use inclusive practices, means that
सिलेबस से हट के उनको बताइए। अरे आप टीचर है, आप रोल मॉडल है, यू आर अ टीचर, यू आर रोल मॉडल। आप जा रहे हैं क्लासरूम में 50 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चे का आइकन है और उस 50 में से 2 का अगर क्यूरियस है कि साइंटिस्ट बने, means that their goal is to be a scientist, become a good scientist, a scientist. Some say become an army officer. उनको बताना पड़ेगा 11 12 आपको एनडीए 40 पर एनडीए का तैयारी करना पड़ेगा, आर्मी अफसर आप बनोगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी उसके बारे में बताना पड़ेगा। 12 तक बच्चे के सिलेबस में नहीं है एनडीए। और शॉर्ट टर्म एक फिक्स ड्यूरेशन में एक बिग गोल है सब बच्चे का, इंडिया के बच्चे का, कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाऊं, मैं आर्मी का अफसर बनूं। और जब उसे सेंस आती है, पता चलता है मैं 12 पास, मेरा एज निकल गया। You should to use inclusive practices in classroom. If you are using inclusive practices in classroom means that बहुत बच्चे हैं और बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और आप उसको क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले ही टॉपिक में बताया कि इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन योर क्लासरूम और ड्यूरिंग लर्निंग एंड टीचिंग। और ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, पहले ही सबसे फर्स्ट में मैं बोला इसमें सारा पार्ट है, मल्टीलिंगुअल, चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी, डिफरेंट कैसा है क्या, मैं इसका शॉर्ट कर रहा हूं ITE, इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन। अब तक हो रहा था एडॉप्टिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम, और अब मैं इसको बोल रहा हूं ITE, इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन। ये जितने भी टीचर हैं सबको इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस अपने क्लासरूम में लेना अपनाना पड़ेगा। If you are using inclusive practices, then you create a barrier-free environment. Then you are modificating your children's. तो ITE में क्या कह रहा हूं, इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन, जिसमें कल्चर के बारे में भी आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। नॉलेज मीन्स दैट you should to acquire, adopt some knowledge that is useful to your children, that is useful for your children, जो आपके बच्चे को यूजफुल रहे, जो आपके बच्चे के लिए यूजफुल रहे। तो ITE इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन, और टॉपिक में उसको थोड़ा सा नाम बदल दिया है, इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन। और पहला क्या बताया, कल्चर, आपको कल्चर के बारे में जानना पड़ेगा। नॉलेज, you should to acquire different topic, you should to know topics. आइडियोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं विचारधारा। You should to create a good ideology, a positive ideology. If you are using inclusive practices in your classroom, means that you providing a barrier-free environment. Barrier means that obstruction between path. कुछ बच्चे को आप बता रहे हैं उसमें भी बैरियर, कुछ बच्चे आपसे पूछना चाह रहे हैं उसमें भी बैरियर, और